سیلاب متاثرین کی مدد میں کوئی سیاست نہیں کی جا رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سیلاب زدگان کی بلا امتیاز مدد کر رہے ہیں، اس معاملے میں ہمیں سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے۔ این ڈی ایم اے نے سیلاب متاثرین میں رقوم تقسیم کی۔ عمران خان کا آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع، تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن یا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کی استدعا کر دی۔ استدعا میں کہا گیا کہ ڈیٹا ریکارڈنگ اور آڈیو لیکس کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ موقف اختیار کیا گیا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے قوانین حقائق کے برعکس ہیں، ایکٹ کے رول اسلامی تعلیمات اور قوانین کے منافی ہیں۔ ملک بھر میں عالمی وبا کرونا وائرس کے وار تھمنے لگے، مثبت کیسز کی شرح میں واضح کمی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 54 افراد کرونا وائرس میں مبتلا، مثبت کیسز کی شرح 0.5% ریکارڈ کی گئی۔ اور ملک کے مختلف علاقوں میں رواں سال کی پہلی برف باری سے موسم سرد ہو گیا۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرخ خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چونیا میں یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خورونوش کی خریداری میں صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے رانا عرفان سے۔ جی آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں چونیا میں یوٹیلیٹی سٹور کے باہر۔ یہاں خواتین کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور خواتین جو ہے یہاں اشیاء خورد و نوش کی خریداری کے لیے جو ہے کافی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں موجود خواتین سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ جی بتائیے گا۔ صبح دے کھلے ہیں، اینی لین لگی ہے، کوئی آٹا نہیں، کوئی کچھ نہیں ملتا پیا۔ نکے نکے بچے ہیں ساڈے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آٹا جلدی دے اور کی کچھ چاہتا ہے جی باجی آپ بتائیے گا۔ ہاں جی بھائی اتنی شام ہی ہو جاتی، کھڑے آنوں نہیں ملتا راشن، سفارشاں والے دے رہے ہیں راشن تے دوسرے غریب کھڑے رہتے ہیں۔ جی یہاں موجود خواتین کا کہنا ہے کہ لمبی قطاریں لگتی ہیں اور ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، اور جو سامان ہے جو خریداری یہ کرنے آتی ہیں ان کے لیے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے حقائق جاننے کی کوشش کی تو اندر جب ہم نے یوٹیلیٹی سٹور کے دیکھا تو اندر بھی یہی صورتحال تھی۔ خواتین اور دیگر جو مرد و حضرات تھے ان کا بھی کافی اندر رش موجود ہے۔ تو یہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے سٹاف کی کمی کا مسئلہ ہے۔ ایک ہی کاؤنٹر ہے جس کو جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور کی انتظامیہ ڈیل کرنے والا ایک ہی کاؤنٹر ہے، جس کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے۔ تو یہاں موجود شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ کاؤنٹرز کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ جو ہے شہریوں کا وقت بچ سکے اور یہ جو ان کے لیے مشکلات ہیں ان میں کمی آ سکے۔ جی سیون شریف کے نواحی دیہات میں پانی جمع ہونے سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد علی میمن کی اس رپورٹ میں۔ کے قریب یو سی آراضی کے گاؤں ٹھارو خان چھٹو اور دھنی بخش چھٹو گاؤں منچر کے 4 فٹ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ گاؤں کے مکین حکومتی امداد کے منتظر ہے۔ ٹھارو خان گاؤں کے مکینوں نے احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ ٹھارو خان چھٹو اور دھنی بخش چھٹو کے گاؤں کے سربراہ عزیز اللہ چھٹو، نظام الدین چھٹو، غلام عباس چھٹو، صاحب چھٹو اور محمد اسلم چھٹو اور گاؤں والوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسکول سمیت 100 گھر تاحال 4 فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کٹ کے دوران چھتوں سے پانی لگا ہوا تھا۔ سرکاری اداروں کی طرف سے پانی نکالنے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کٹ کو تقریباً 1.5 ماہ گزر چکا ہے، لیکن ہمارے ساتھ دوہرا معیار رکھا گیا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ سڑکوں پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں کے گارڈر، ٹیر اور دیگر سامان اور گاؤں میں نصب بجلی کا ٹرانسفر بھی چوری ہو گیا ہے۔ چیئرمین یو سی آراضی اور راشن دینے والے ایسی سیون شریف نے گاؤں کے لوگوں کو کوئی سیلابی امداد نہیں دیا ہے، جو کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے۔ ٹھارو خان چھٹو کے دیہاتوں نے وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف، صدر پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اعلیٰ حکام سے درخواست کی ہے کہ ہمارے گاؤں کے سروے کریں
اور پانی کی نکاسی کی جائے اور ہمیں راشن اور امدادی فنڈ کا سامان بھی دیا جائے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی زیر صدارت کمشنر آفس ڈی جی خان میں اجلاس ہوا، جس میں کمشنر ڈی جی خان لیاقت علی چٹھا اور دیگر نے شرکت کی۔ زاہد اختر زمان نے سیلاب زدہ علاقوں میں سروے اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے آئندہ کی حکمت عملی بنائی جائے، مستقبل میں سیلاب کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے پلان کی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا شدید بارشوں سے رنی کوٹ کو ہونے والے نقصان کا نوٹس۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ قلعہ کے کچھ پرانے حصے بحال کیے گئے ہیں۔ ناقص ڈرینیج سسٹم کے باعث بارش کے پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی۔ جو دیواریں پہلے بحال کی گئی تھیں، لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ رنی کوٹ کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ سندھ کے سیلابی علاقوں کے کئی دورے کر چکا ہوں، ہم متاثرین کی بحالی کے لیے تمام ذرائع بروئے کار لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 70% بارش کے پانی کی نکاسی ہو گئی ہے، ہم جلد اپنی زرعی اراضی گندم کی کاشت کے لیے تیار کر دیں گے۔ پشاور میں سیکرٹری محکمہ ایکسائز مشرف خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق لکی سیمنٹ فیکٹری پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے مختلف قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ لوکل گورنمنٹ لیگل ایڈوائزر سے مختلف قانونی نکات پر تفصیلی گفتگو کے بعد دوبارہ اجلاس منعقد ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قصور میں سی آئی اے صدر پولیس کی کارروائی ڈکیتی اور آسنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث مبشر ڈکیت گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی نقدی 1 لاکھ روپے، 3 موبائل فون اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش 9 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ قصور میں سی آئی اے صدر پولیس کی کارروائی ڈکیتی اور آسنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث مبشر ڈکیت گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی نقدی 1 لاکھ روپے، 3 موبائل فون اور اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ ملزمان نے دوران تفتیش 9 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ سیال کوٹ میں دوہرے قتل کے مقدمے کی سماعت۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ملزم عمران کو 2 بار سزائے موت کی سزا سنا دی۔ مزید جانتے ہیں محمد مشتاق بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ سیالکوٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبدالجبار نے دوہرے مقدمہ قتل کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ملزم عمران عرف منا نے گزشتہ سال 2021 تھانہ نیکا پورہ کے علاقہ ٹبہ سجدہ میں 2 افراد کو چھریوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ملزم کو سزا میں 2 بار سزائے موت اور 8 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 6 ماہ قید کاٹنا ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد۔ بنوں میں ملک عرفان خان کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں۔ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے بانی رکن اور سابق صدر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج محمد خیل عرفان وزیر کے قتل کا مقدمہ تانا کینٹ میں درج کر لیا گیا ہے، جس میں وجہ قتل مبینہ ملزمان کو بدتاخوری سے منع کرنا بتایا گیا ہے۔ مقتول کے قتل کا مقدمہ ان کے والد ملک میر شمت خان کی مدیت میں درج کیا گیا ہے اور اس میں قتل و اقدام قتل کے دفعات شامل کیے گئے ہیں۔ ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے کہ علاقہ میں بدتاخوری اور دیگر جرائم سے منع کرنے پر مبینہ ملزمان نے ملک عرفان وزیر کو قتل کیا۔ واضح رہے کہ ملک عرفان وزیر اپنے علاقے محمد خیل میں گزشتہ روز
فتح जंग में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, खातून को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा खातून ने थाना फतह जंग में दरख्वास्त दी थी कि वसीम अख्तर नामी औबाश ने ज्यादती की और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी थाना सिविल लाइन की हदूद में गैस सिलेंडर फिलिंग की दुकान पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से सलमा मलिक की इस रिपोर्ट में। फिलिंग की दुकान में इस वक्त आग भड़क उठी जब सिलेंडर भरने के दौरान गैस लीकेज हुई और इससे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके बाद आग ने दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम रेस्क्यू 1122 की इमदादी कार्रवाइयों के नतीजे में आग पर जल्द काबू करके आग को मजीद फैलने से रोक लिया गया। जराये का कहना है कि इस वक्त शहरों कैंट में इंतजामिया की नाअहली की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी गैस फिलिंग की दुकानें मौजूद हैं, जिसकी वजह से पहले भी वाकयात रनुमा हो चुके हैं और अब फिर इन वाकयात में नया इजाफा हो गया, जिनके खिलाफ इंतजामिया को फौरी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी काम में मुलव्विस अनासर को रोका जाए। कसूर में थाना थे शेखम पुलिस की कार्रवाई, अब्दुल्ला उर्फ छीना डकैत गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई 50,000 रुपये नकदी और असलहा बरामद किया गया है। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश गिरदोनवाह में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। आपको एक बार फिर बताएं कि कसूर में थाना थे शेखम पुलिस की कार्रवाई, अब्दुल्ला उर्फ छीना डकैत गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई 50,000 रुपये नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश गिरदोनवाह में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ भी किया है। ओकाड़ा में चोरी की बढ़ती हुई वारदातें, मकामी मस्जिद से बैटरियां चोरी हो गईं। मजीद जानते हैं दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में चोरों ने अल्लाह के घर को भी ना छोड़ा, टूटियां, गल्ले और बैटरियां चोरी होने लगी। बैटरियों और गल्ले चोरी करने वाले चोर पुलिस की पहुंच से दूर। मुतअद्दिद मस्जिदों की बैटरियां चोर ले उड़े। थाना सिटी और सदर नाला की हदूद में 5-1R, 12-1L, तारक गार्डन और दीगर इलाकों की मस्जिद से बैटरियां गायब हो गई। मस्जिद से बैटरी चोरी की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि कैसे दिन दहाड़े चोर मस्जिद से बैटरी चोरी करके रफू चक्कर हो जाता है। अहले इलाका का DPO उकाड़ा और RPO साहिवाल से। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रावलपिंडी में ANF और की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ANF और ASF ने बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाइयाँ करते हुए शारजाह जाने वाले बन्नू के रिहायशी मुलजिम से 9,300 नशा आवर गोलियाँ बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम के ट्रॉली बैग से 1 किलो 521 ग्राम आइस बरामद हुई। मुश्तरका कार्रवाई के दौरान प्लास्टिक बैग से 20 किलो चर्स बरामद हुई। हैदराबाद में कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान से 6 किलोग्राम चर्स बरामद की गई है। एक बार फिर आपको बताएं कि रावलपिंडी में ANF की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ANF और ASF ने बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए शारजाह जाने वाले बन्नू के रिहायशी मुलजिम से 9,300 नशा आवर गोलियाँ बरामद की। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम के ट्रॉली बैग से 1 किलो 521 ग्राम आइस बरामद हुई। मुश्तरका कार्रवाई के दौरान प्लास्टिक बैग से 20 किलो चर्स बरामद हुई। हैदराबाद में कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान से 6 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। ओकाड़ा में रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम की गाड़ी चोरी हो गई। पुलिस चोरी शुदा गाड़ी बरामद करवाने में नाकाम हो गई। मजीद जानते हैं दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में।
उकाड़ा रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम की अपनी गाड़ी की बरामदगी के लिए दुहाई। पुलिस अपने पेटी भाई की गाड़ी बरामद ना करवा सकी। डीपीओ ऑफिस के बाहर से हाजिर सर्विस एसएचओ की गाड़ी चोरी हुई, जिसको 8 माह बाद भी पुलिस बरामद ना करवा सकी। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर्ड हो गया। गाड़ी चोरी का मुकदमा थाना सदर में दर्ज करवाया गया, लेकिन गाड़ी हाल ना मिल सकी। गाड़ी की बरामदगी के लिए मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी, लेकिन गाड़ी नहीं मिल सकी। रिटायर्ड एसएचओ का कहना था, मैं मोहम्मद असलम इंस्पेक्टर साहब का एसएचओ थाना दपालपुर तैनात था। मैं डीपीओ ऑफिस में उकाड़ा में बराए मीटिंग हाजिर आया, लेकिन मेरी गाड़ी चोरी हो गई, जिसका मुकदमा नंबर 74/21 थाना सदर उकाड़ा में दर्ज है। लेकिन मेरी गाड़ी ताहाल ना मिल चुकी। मुझे पता चला है किसी आदमी को चलान कर दिया है। अगर वो गुनाहगार था तो मुझे मेरी गाड़ी मिलनी चाहिए। अगर वो बेगुनाह था, चलान क्यों किया गया? इस सिलसिला में सरदार असगर सैती की ज़ेर निगरानी डीपीओ उकाड़ा से भी बात हुई थी, दरख्वास्त भी पेश की थी, जिन्होंने वादा किया था, लेकिन ताहाल मुझे कोई इसके बारे में पता न चला है, ना मेरी गाड़ी बरामद हुई है। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी गाड़ी बरामद की। अगर मेरी गाड़ी नहीं मिल सकती तो प्राइवेट आदमी किसी क्या हाल होगा। डीपीओ उकाड़ा ने भी वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। अगर एक पुलिस अफसर की गाड़ी नहीं। मस्कत से गिरफ्तार करके लाए जाने वाले साजिद के अहले खाना और इलाका मकीनों का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर साजिद किसी जुर्म में मुलव्विस है तो इसे अदालत में पेश किया जाए। मजीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। मस्कत से गिरफ्तार करके लाए जाने वाले साजिद बलोच के अहले खाना सरापा एहतजाज बन गए। अहले खाना का कहना है कि कराची लाने के बाद साजिद को अदालत में पेश क्यों नहीं किया जा रहा। साजिद बलोच की बाजियाबी के लिए अहलियान रियाली और पुराना गोली मार के रईसों ने कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में शरीक खवातीन का कहना है कि साजिद बलोच को मस्कत से कराची मुंतकिली के बाद अदालत में पेश नहीं किया गया। अगर वो केस में नामजद हैं तो पेश किया जाए। साजिद बलोच के अहले खाना रियाली और पुराना गोली मार के वकीलों ने जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जी रेंजर और वज़ीर आला सिंध से अपील की है कि साजिद से मुलाकात कराई जाए। अगर वो किसी जुर्म में मुलव्विस है तो इसे अदालत में पेश किया जाए। नारंग मंडी में बैंकों की जानिब से यूटिलिटी बिल जमा न किए जाने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में बैंकों की जानिब से यूटिलिटी बिल जमा न करने पर शहरियों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने बताया कि कई माह से बिल जमा नहीं हो रहे, जिसकी वजह से कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंच रहा है। अवाम की कसीर तादाद बिल हाथों में लिए बैंकों का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आइए पूछते हैं मुतासिरीन इस सिलसिले में क्या कहते हैं। जी, कोई डाकखाना हमारा बिल जमा नहीं कर रहा। हमें वज़ारत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करते हैं कि हमारे गरीब आदमियों के बिल बैंकों में जमा किया जाए। हमें दलील अखबार होना पड़ता है। कभी कहा जाता है कि पान वाले के पास जाओ, कभी कहता है कि खोखे वाले के पास जाओ। हमारे बिल जमा नहीं करते। हम वज़ारत खजाना से अपील करते हैं, सरकार से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हमारे बिल बैंकों में जमा किया जाए। उनको हदायत की जाए कि कोई साल बिल लेकर आए, उनको वापस किया जाए, उनके बिल फौरन जमा किया जाए। रिटायर्ड वार्डा मुलाजम मरीज की डिवीजन के पेंशन सेल का चेयरमैन। मैं अपना बिल जमा कराने वास्ते हबीब बैंक गया। 29,000 का बिल सी, लेकिन बैंक वालों ने बिल जमा करने से इनकार कर दिया। मैं दूसरे बैंक में गया, उन्होंने भी बिल जमा करने से इनकार कर दिया। बल्कि तमाम बैंक जो हैं वो बिल जमा नहीं कर रहे। लेकिन ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि गरीब आदमी जब बिल जमा कराने के लिए किसी बैंक में जाए तो वो साफ इनकार कर दे। डाकखाने वाले भी बिल जमा नहीं कर रहे। वो लंबी कतारें लगी हैं बुजुर्गों की, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 50 साल का है वो आदमी है, उनके बिल जमा नहीं कर रहे। वो दिलोफार हो रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। मैं वज़ारत खजाना साहबदार से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि गरीब आदमी जब बैंक में बिल लेने के लिए, बिल जमा कराने के लिए जाए, इनके फ़ौरन बिल जमा कर लिए जाए। लेकिन बिल जमा नहीं करते, दलील अखबार होकर कभी किसी के पास भेजते, कभी किसी के पास भेजते हैं, कहते हैं कि फलाने पान वाले के पास जाओ, वो जमा आपके बिल जमा करेगा। लेकिन अफसोस है, हम हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे जमा कराना चाहते हैं, लेकिन बैंक हमारे बिल लेने से साफ इनकार है। ना डाकखाना बिल ले रहा है, ना
लिया थाना चौबारा में डीपीओ की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं मलिक फैज की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया शाजिया सरवर की ज़ेर सदारत थाना चौबारा में खुली कचहरी का इनेकाद डीएसपी चौबारा महबूब अहमद, SHO चौबारा, दीगर अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद खुली कचहरी में मौजूद थी। डीपीओ लिया ने फर्दन साइलिन के मसाइल सुने, गुजारी गई दरखास्तों पर कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका पुलिस अफसरान को फौरी हल के लिए हिदायत जारी की। शहरियों की तरफ से इनफरादी और इज्तमाई नौइयत के मसाइल पर मबनी दरखास्तें पेश की गईं। डीपीओ लिया ने डीएसपी चौबारा को हिदायत की कि वो 2 दिन मुसलसल थाना चौबारा आएँ और आवाम के मसाइल हल करें। डीपीओ लिया ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी का इनेकाद का मकसद अवाम उन्नास के पुलिस से मुतल्लिका मसाइल हल करके अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा को कायम करना है, क्योंकि अवाम और पुलिस के बाहमी ताउन, एतमाद और करीबी राब्ते के ज़रिए पुरअमन मुआशरे का क़याम मुमकिन है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में भी बढ़ती हुई महंगाई से ताजिर बरादरी परेशान है। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद शेख हबीब समेत दीगर ताजिरों ने बढ़ती हुई महंगाई पर इजहार तशवीश किया। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। के हुक्मरानों को एहसास दिलाना, पिछले 70 साल से जो हमारे मुल्क के अंदर लूटमार हो रही है और झूठ बोल के लॉलीपॉप दे के अपना मैनिफेस्टो बता के और ये बताते कुछ है और हुक्मरान करते कुछ है आवाम के साथ। तो 25 करोड़ आवाम इस वक्त बेहद परेशान है इस महंगाई के खिलाफ में, और मैं समझता हूँ कि मुल्क की मैशत बिल्कुल तबाही के थाने पे खड़ी हुई है। इस हुकूमत ने 6 माह पहले आने से पहले ये दावे और वादे किए थे कि जी हम आएंगे तो हम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। पिछली हुकूमत के दौर के अंदर जो है 7% और 8% महंगाई का सैलाब था, और उसके बाद वो 14 या 15% पे जब वो गई है तो कौम ने कहा कि जी आप इसको महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो लिहाजा आप फारिग हो जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो 13 जमातें हैं। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि पाकिस्तान की नामवर जमातें इस वक्त PDM के साथ जुड़ी हुई है और ये महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके, जबकि ये वादा कर रहा था इन्होंने वादा किया था कि 180 रुपये जो है डॉलर पे लाके खड़ा कर देंगे, 100 रुपये लीटर पेट्रोल को बिकवाएंगे, और आज इन्होंने 110 रुपये 112 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिए। आटे की कीमत के ऊपर इन्होंने 10 किलो आटे पे 600 रुपये बढ़ा दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि और आज दूध को आप देख लें कि दूध जो है 110 रुपये किलो था, आज 200 रुपये किलो दूध बिक रहा है। तादाद में हजारों की तादाद में है। आप अंदाजा करें, छोटी इंडस्ट्री बिल्कुल बंद होने की चली गई है। छोटा ताजिर तबाही के धाने पे चला गया। फार्मा सिटी से लोगों को निकाला जा रहा है, इंडस्ट्रीज से लोगों को निकाला जा रहा है, ऑफिस से लोगों को निकाला जा रहा है। तो 7 करोड़ से ज्यादा की जो मसद अवाम है पाकिस्तान की, वो शरह गुर्बत की लकीर से नीचे है इस वक्त। तो बात करूंगा कि मैं ये बात बोलूंगा कि आज से 3 साल 4 साल पहले मुल्क यूं था, ठीक है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को एकदम नीचे नहीं आया। ये मुल्क को नीचे लाया गया। डिमांड ये है सर जी, हमारी डिमांड हमारी सिर्फ इतनी सी है कि खुदा के वास्ते मुल्क का ख्याल करें। लोग बेरोजगारी की तरफ जब जितने जाएंगे, बेरोजगारी की दूसरा नाम है फिर वही कि बेरोजगारी का दूसरा नाम चोरी, डकैती, फांसी, आम, इसकी वजह यही है, बस और कोई वजह नहीं है। ठीक है, मैसेज देना है कि उसको जगाना है कि जागो। आजकल जो हालात है खासकर कराची में करम के रहम व करम पर। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सजावल में सफाई के नाकिस इंतजाम के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लगे। मजीद जानते हैं गुलशेर मीर की इस रिपोर्ट में। सजावल शहर में सफाई का निज़ाम बेहतर ना हो सका। सजावल के शहरी टाउन इंतजाम के खिलाफ एहतियात करने पर मजबूर। शहर सजावल मुकम्मल गंदगी के लपेट में आ गया। सजावल शहर में सफाई का निज़ाम बेहतर ना होने और बारिशों की पानी की निकासी ना होने के खिलाफ एडवोकेट इरफान गुल की सरबराही में टाउन इंतजाम के खिलाफ एहतियाजी मुजाहरा किया गया। शहरियों ने कहा कि सजावल शहर में सफाई का निज़ाम ना होने की वजह से शहर कचरा कुंजी में तब्दील हो गया है। 2 माह गुजर चुके हैं मगर बारिशों का पानी ताल शहर से नहीं निकाला जा सका है।
जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी अभी भी खड़ा है, जिसको 2 माह गुजर चुके हैं। टाउन इंतजामिया को कई मरतबा शिकायत भी की है, मगर टाउन अमला सुनने को तैयार ही नहीं। बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से गंदे पानी में से स्कूल के बच्चों को गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि 3 दिन में शहर में सफाई का निज़ाम बेहतर न बनवाया गया तो टाउन ऑफिसर के खिलाफ कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। कैमरा टीम के संजयपुर में सरकारी डिस्पेंसरी की इमारत खस्ता हाल, अहले इलाका ने डिस्पेंसरी को जानवरों की आरामगाह बना लिया। मजीद जानते हैं जाम ज़मीर की इस रिपोर्ट में। संजरपुर बस्ती कंडेर में एक ही डिस्पेंसरी है, वो भी अरसा दराज से बंद है। और IS की इमारत की बात की जाए तो वो भी टूट फूट का शिकार है और डिस्पेंसरी भी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। अहले इलाका का ने वहां पर जानवर बांध रखे हैं और गंदगी के ढेर लगा रखे हैं। अहले मोहल्ला की तरफ से बताया गया है कि यहाँ एक ही डिस्पेंसरी है, वो भी अरसा दराज से बंद है और हम दवाई लेने के लिए दूर दराज इलाके में जाना पड़ता है और बहुत दुश्वारी का सामना पेश होता है। मजीद उन्होंने हुकूमत वक्त से अपील की है कि इस डिस्पेंसरी को दोबारा बहाल किया जाए और ताकि हमें और हमारे बच्चों को यहाँ पर दवाई आसानी से मिल सके और किसी दुश्वारी का सामना ना पेश हो। डहरकी में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं राहिब सुमरो की इस रिपोर्ट में। के दहाने आए दिन गटरों के गलादतों भरे पानी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। डहरकी टाउन इंतजामिया को आवाम पर रहम न आया। गटरों के पानी ने नमाजियों का रास्ता रोक लिया। बच्चे, बूढ़े और खवातीन परेशान। आए दिन खुले गटरों में गाड़ियों का फंसना मामूल बन गया। इस पर आवाम का गुस्सा और कहना ये था कि ये शहर की हालत देखो, ये क्या हालत है, खुदा के लिए रहम करो। डहरकी का आपको एड मिलता है, फंड मिलता है, उसका सही इस्तेमाल करो। ये नहीं है कि भाई अगर वो सही फंड इस्तेमाल हो तो हमारा शहर डहरकी जो है पैरत बन जाए। अब जहाँ जाओ गलियों में गंद पड़ा है, पानी खड़ा है, ये खुदा के लिए रहम करो भाई डहरकी के ऊपर। डहरकी टाउन करोड़ों रुपए मालियत के बजट के बावजूद भी मुलाजमीन महीनों तक तनख्वाहें ना मिलने पर हमेशा सरापा एहतजाज रहे और उसी वजह से भी डहरकी शहर हमेशा गंदगी के ढेर और उबलते गटरों की नजर रहा। मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से मुद्दतों गुजरने के बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह काम दिखाई ना दिया। इस पर लोगों का कहना ये था कि ये डहरकी शहर में इतनी गलियों में गंद कचरा पड़ा हुआ है। गुलाब शाह चौक पे बहुत गंदा पानी था, जो नमाजी को रास्ता नहीं मिल रहा था। और कब्रिस्तान नजदीक दरबार है सैयद गुलाब शाह बुखारी की, कोई हमें सहूलत डहरकी शहर में नहीं मिल रही। ये डहरकी में फंड आ रहे हैं, इंग्रो से आ रहा है, माड़ी के से आ रहा है। ये इंतजाम में पता नहीं क्या कर रही है, कोई पता नहीं लग रहा। इंतजाम को हम हिदायत करते हैं, DC साहब को हिदायत करते हैं और मुतसिब आला को सिंध को अर्ज कर रहे हैं कि इस पे कंट्रोल करें भाईजान। ये रास्तों में गलियों में गंद पड़ा हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं और रास्ता नहीं हो रहा। किसी को बच्चों को रास्ता नहीं मिल रहा, औरतों को नहीं मिल रहा, बच्चे स्कूल के लिए परेशान होते हैं। डहरकी टाउन कमेटी बजट की बहती गंगा से। बहावलपुर में डॉक्टर मोहम्मद तारिक मलिक का कहना है कि नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी है। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल बहावलपुर के फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर मोहम्मद तारिक मलिक ने कहा कि हम आवाम को फिजियोथेरापी की मुफ्त सहूलियत फराहम कर रहे हैं। हमारे पास दूर दराज से लोग आते हैं, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक होकर जाते हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मियां बलीगुर रहमान ने बेस्ट डॉक्टर का मुझे अवार्ड दिया है, जो मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मैं गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड दिया है। मेरा नाम मोहम्मद एहतशाम है, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूं। फुटबॉल खेलते हुए मेरी इंजरी हो गई थी जिसमें मेरा ACL टीयर हो गया था। मैंने उसकी सर्जरी करवाई और डॉक्टर तारिक मलिक से फिजियोथेरेपी करवाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक मलिक है और मैं बतौर फिजियोथेरेपिस्ट सादिक अब्बासी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 9 साल से इस हॉस्पिटल से वाबस्ता हूँ और शोबे फिजियोथेरेपी में हम अपने मरीजों की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे पास जैसा कि फालिज, लकवा, रीढ़ की हड्डी के अमराज, कंधे का जाम हो जाना, पट्ठों के मसाइल और ऐसे अफराद जो बिस्तर पे महदूद हो रहे हों या हो चुके हों, या छोटे बच्चे जो गर्दन नहीं संभाल सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, औरतों में डिलीवरी के बाद कमर दर्द हो जाता है, इन जैसे तमाम मसाइल में
और खुदा न खास्ता अगर हड्डी टूट जाए यानी फ्रैक्चर हो जाए या जोड़ों की तब्दीली का ऑपरेशन जैसा कि घुटना तब्दील कराया गया है या कूल्हे का जोड़ तब्दील कराया गया है, उसके बाद या कोई लिगामेंट इंजरी हो जाती है तो उसके बाद हम फिजियोथेरेपी सर्विसेज दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ से हमारे पास जनूबी पंजाब से भी यहाँ मरीज़ आता है रिहैबिलिटेशन के लिए, यानी फिजियोथेरेपी तरीका इलाज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि गवर्नर पंजाब जनाब मियाँ बलीगुर रहमान साहब ने हमारी इस खिदमात के एतराफ़ में उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा है। मैं उनका मशकूर हूँ और मैं यहाँ लोगों की बीमार मरीज़ों की खिदमात के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। कैमरामैन खुर्रम शदाद के साथ। संजयपुर में खेल का ग्राउंड न होने की वजह से नौजवानों को परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं जाम जमीर की इस रिपोर्ट में। संजरपुर में खेल का ग्राउंड न होने की वजह से स्टूडेंट कई किलोमीटर दूर गवर्नमेंट स्कूल में क्रिकेट खेलने पर मजबूर है। नौजवान का कहना था, संजरपुर से सबसे मेन मसला जो अभी तक चल रहा है ना, वो क्रिकेट ग्राउंड का है। क्रिकेट ग्राउंड ना होने की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। हमारे पास पहले गला मंडी का ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन आज वो नहीं है, तो उसमें गंदम की वजह से हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। हालांकि बड़ा अरसा तक हमने वहाँ पे क्रिकेट खेली। अभी नौजवानों ने टूर्नामेंट करवाने का जो ये इनिशिएटिव लिया, तो वहाँ हमें संजरपुर को छोड़कर माई की गोट संजरपुर से 3 किलोमीटर दूर आना पड़ा। तो मैं तो अपने जितने अकाबरीन हैं, जो मुतलका इदारे हैं, जो हमारे MNAs MPA साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस हल्के की आवाम पे थोड़ा सा तर्ज करें, थोड़ा सा रहम करें और उनके साथ कोऑपरेट करें। जैसा कि पहले भी हमारे बहुत सारे मुतालबात माने गए हैं, लेकिन इस मरतबा अगर हमारा ये मुतालबा मान लिया जाए तो ये बहुत ज़रूरी बात है। और नौजवान जो हैं, जो इस वक्त नशे में चले गए हैं या वो दूसरी अल्लाह माफ़ करे बहुत कभी किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें मुलव्वस होने लग गए हैं, जो फारिग रहने की वजह से, अगर ये ग्राउंड होगा तो संजरपुर में ये क्रिकेट हम दोबारा बहाल कर सकते हैं। संजरपुर में अगर खेल का ग्राउंड दिया जाए तो हमारी मुश्किलात कम हो सकती हैं और क्रिकेट और हम दीगर गेम्स ग्राउंड में खेलने से नौजवान में जज्बा पैदा होगा। संजरपुर के नौजवानों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि संजरपुर में एक खेल का ग्राउंड दिया जाए ताकि संजरपुर के नौजवान हर खेल में हिस्सा लें। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अदनान से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदनान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर फरद नवीद, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज शाह लतीफ़, मियां जादुर रहमान वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद गोंदल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज, प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डॉक्टर SN वज़ीर रटोर प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर नदीम हफीज प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट साइंसेज, प्रोफेसर फरूक अफजल प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफर फरीद MS जिना हॉस्पिटल, डॉक्टर याहिया सुल्तान और पंजाब के तमाम सरकारी टीचिंग असद सरबान MS हजरात ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। इस मौका पर सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इमरजेंसी प्रोटोकॉल, अद्वियात की फराहमी और रेफरल सिस्टम के तमाम की तफसीली जायजा लिया। जी बहुत शुक्रिया अदनान, आपने अपडेट किया। बर्फ से ढके पहाड़ों के दामन और ठंडे सहरा में होने वाली सालाना सफरिंका जीप रैली 2022 का मार्का एसए ग्रुप ने अपने नाम कर लिया। एसए ग्रुप के CEO शुएब अफजल मलिक का काला शाह काकू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। सफरिंका कोल्ड सहरा जीप रैली में शुएब अफजल मलिक का प्रीपेड कैटेगरी में खतरनाक और दुश्वार गुजार ट्रैक को बड़ी महारत से 48 मिनट और 27 सेकंड में पूरा करते हुए फातेह करार पाए। सफरिंका जीप रैली 2022 का टाइटल अपने नाम करते हुए ट्रॉफी और कैश प्राइज के हकदार ठहरे। इस मौके पर शुएब अफजल मलिक का कहना था कि मुसलसल मेहनत और जिद्दोजहद ही खिलाड़ी की कामयाबी का राज होता है। बगैर मेहनत और प्रैक्टिस के कोई भी खिलाड़ी कामयाब नहीं हो सकता। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इंतखाबात में अमेरिकी अवाम अपने वोट की ताकत से अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ न्यूयॉर्क और नकवी की इस रिपोर्ट में। अमेरिका में इस वक्त मिड टर्म इलेक्शन का हंगामा अपने पूरे अरूज पर है। 8 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में ईवान नुमाइंदगान की 435 नशिस्तों पर अमेरिकी अवाम वोट की ताकत से अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। 2020 में होने वाली मरदमशुमारी के तनाजुर में इलाके रीडिस्ट्रिक्ट होने के बाद ये पहला इलेक्शन है। साउथ एशियन कम्युनिटी भी इस इलेक्शन में बड़े जोरों शोर से हिस्सा ले रही है। अमेरिका में रवायती तौर पर साउथ एशियन उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं, मगर इस दफ़ा हैरत अंगेज तौर पर रिपब्लिकन पार्टी ने पाकिस्तानी बिजनेसमैन आमिर सुल्तान को डिस्ट्रिक्ट 10 में अपने उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया। आमिर सुल्तान न सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन हैं बल्कि एक मुतहरिक समाजी कारकुन भी हैं। रवां हफ्ते पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से आमिर सुल्तान के एजाज़ में एक फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया। ये तकरीब नमीद महमूद के खूबसूरत घर डिक्सिल में मुनक्किद की गई। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और आमिर सुल्तान को अपनी हमायत का यकीन दिलाया। आमिर सुल्तान ने कम्युनिटी की तकरीब में आमद का शुक्रिया अदा किया और बताया कि उन्होंने पहले दिन से इस इलेक्शन में शिरकत करने का नहीं सोचा था। आमिर का कहना था कि एक दिन उनके 5 साला बेटे ने स्कूल से वापस आकर उनसे कहा कि बाबा काश मैं एक लड़की होता और मैं लड़कियों की तरह कपड़े पहनना चाहता हूँ। आमिर का कहना था कि अपने बेटे की बात सुनने के बाद उसी वक्त मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है और असेंबली में जाकर स्कूलों में दी जाने वाली हम जिन्स परस्ती की इस तालीम का रास्ता रोकना होगा। We don't know what is happening in the schools, in the society. It's messed up, all right? And you don't realize it until it hits home to you. And that is why I'm taking this initiative. You know, it's okay for him to dress up in a girl's dress. And he wish he was a girl. That's when I flipped. इस मौके पर तकरीब में मौजूद हाजरीन ने आमिर सुल्तान के मिशन को सराहा और कहा अगर हमने इस मुल्क में अपनी आइंदा नस्लों को बचाना है तो हमें दूसरों की तरफ देखने की बजाय खुद असेंबलियों में जाना होगा। We should have people of our community to represent our community and do the good work. He's a very brave and hardworking man, and he has put so much into this. The fact that he is so sincere, and you can see his passion and the belief that he has. He's our community member, and he encourages enough to stand for our rights. Amir is a great American. He believes in the values of this country, and he's doing it for the right reason. केएन न्यूज़ से बात करते हुए तकरीब के शुरका का कहना था, I felt the need that I have to do something, make some difference for the future of my generation and this country. This is my country, so I have to, whatever I have to do, I have to do for my country and my future generation. Thank you. Amir, like our candidate, is a prime example of that. I think he's going to do a phenomenal job, and we all need to support. Make sure that we support people from our community, and that's basically what I would like to communicate to all of my associates and family members. He understands the issues that he's facing the Pakistani American community, and he understands the issues facing the general community in his constituency. I think it's only fair to support this guy by going to the polling booths and vote for him. He's the type of person that we need in the state assembly to introduce legislation, draft legislation, and fix the problems himself. And I believe that he can do that. He can be a piece of the puzzle to break that supermajority in the assembly and to bring New York State back to greatness. And you have to support the people that are going to be the best person that are going to represent you. And I believe in Amir, and I think that he's the best candidate. तो मेरे सबसे ज़्यादा ये कि वक्त आया कि पाकिस्तानी और हमारे मुसलमान भाई लड़े, उसको सपोर्ट करें ताकि जो चीज़ें हमें मालूम नहीं है वो चीज़ें अवेलेबल हैं स्टेट लेवल से उनको मिलती रहें। आज की तकरीब के शुरका का ये कहना था कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हम जिन्स परस्ती का जो भयानक एजेंडा हमारे बच्चों पे मुसल्लत किया जा रहा है उसका रास्ता रोकने का वाहिद हल आमिर सुल्तान जैसे उम्मीदवारों को सपोर्ट करना है। ऑन नकवी, कोहिनूर न्यूज़, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वालिदैन की जानिब से रकम के एवज बिकने वाली 15 साला घरेलू मुलाजमा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी तहवील में ले लिया। बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हॉस्टल में रखा गया है जहां पर वो खुश है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की लड़की को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बड़ा एक्शन करते हुए पैसों के एवज बिकने वाली सिदरा नामी बच्ची को अपनी तहवील में ले लिया है। वालिदैन ने रकम की खातर अपनी बच्ची को घरेलू मुलाजमत पर बेच दिया था। घरेलू मुलाजमा सिदरा शेखुपुरा में कोठी पर काम करती थी, वहां से भागकर लाहौर आ गई।
इत्तला मिलने पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्ची को अपनी तहवील में लेकर हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया है। बताता चलो कि बच्ची ने अपने वालिदैन के साथ जाने से भी इनकार कर दिया है। इस पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने खुसूसी हदायत जारी की हैं कि बच्ची का खास ख्याल रखा जाए और उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आसिम राजा, आपने अपडेट किया। पीएचए का एक और अहसन इक़दाम, डीजी पीएचए के अहकामात पर रेलवे स्टेशन पार्क में फ्लावर कारपेट बनाना शुरू कर दिया गया है। फ्लावर कारपेट बनने से पार्क की खूबसूरती में इजाफा होगा। क्लीन ग्रीन और शाइनिंग का लाहौर मुहिम के तहत लाहौर की ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स को पीएचए इंतज़ामिया की जानिब से मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। पीएचए जोन 2 के अमले की जानिब से अहकामात की रोशनी में रेलवे स्टेशन पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए फ्लावर कारपेट बनाने का आगाज़ भी कर दिया गया है। आपको बताएं कि पीएचए का एक और अहसन इक़दाम, डीजी पीएचए के अहकामात पर रेलवे स्टेशन पार्क में फ्लावर कारपेट बनाना शुरू कर दिया गया है। फ्लावर कारपेट बनने से पार्क की खूबसूरती में इजाफा होगा। क्लीन ग्रीन और शाइनिंग लाहौर मुहिम के तहत लाहौर की ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स को पीएचए इंतज़ामिया की जानिब से मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। पीएचए जोन 2 के अमले की जानिब से अहकामात की रोशनी में रेलवे स्टेशन पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए फ्लावर कारपेट बनाने का आगाज़ भी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत महकमा P&T में इजलास हुआ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। तरक्याती बजट के शफाफ और बर वक्त इस्तेमाल के लिए तमाम महकमे मज़ीद मेहनत से काम करें, चीफ सेक्रेटरी की हिदायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल ने कहा, तरक्याती मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्कीमों के आगाज़ से तकमील तक के टाइम फ्रेम पर अमल किया जाए। रावलपिंडी में महकमा हेल्थ के ज़ेर एहतमाम मेडिकल यूनिवर्सिटी में टीबी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अनवारुल हक मुगल की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी टीपू रोड पर वाक़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंप में टीबी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वीसी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद उमर, CEO DHA डॉक्टर अंसर, प्रिंसिपल RMC डॉक्टर जहांगीर सरवर, टीबी प्रोग्राम पंजाब के डॉक्टर सरमद सिद्दीकी, डॉक्टर आमर सफदर समेत मुख्तलिफ सीनियर डॉक्टर्स ने शिरकत की। जबकि WHO के डॉक्टर डीनियस ने लिंक के जरिए खिताब किया और शुरका के सवालात के जवाबात दिए। कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सरमद सिद्दीकी और डॉक्टर आमर सफदर ने कहा कि तशखीस और इलाज के लिए काम कर रहा है। तो हमारा आज का जो सेमिनार था, इसका बुनियादी मकसद ये था कि टीबी के मरीज़ों की तशखीस तो हम काफ़ी अरसे से उसके लिए सर्विसेज दिए हुए हैं, लेकिन आज हमने जो सेमिनार में अपना एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, उसमें आप टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी का हमने नाम लिया है, जो कि टीबी की बचाव की दवाई है, जो कि टीबी के ऐसे मरीज़ जिनके घर वाले उनको एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन उनको वो बीमारी लग सकती है, उनके लिए मरीज़ के साथ रहने वालों के लिए ये दवाई है, जिसको प्रमोट करने के लिए हमने आज का सेमिनार मुनक्किद किया है। हमारे पास इसमें 2 ग्रुप्स हैं, ऐसे अफराद जिनको HIV एड्स का शिकार है, या ऐसे अफराद जो टीबी के छाती की टीबी के मरीज़ों के घर वाले हैं। उन 2 ग्रुप्स के अंदर हम ये दवाई देने जा रहे हैं, और उसके लिए आज के सेमिनार का मकसद रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में आके सीनियर डॉक्टर्स के साथ गुफ्तगू करके और इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है। WHO ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। टेक्निकल गाइडेंस जो होती है, गाइडलाइंस डेवलप करना, न्यू जैसे कि आप आज सेमिनार देखा है, इस तरह के सेमिनार्स, अवेयरनेस क्रिएट करना, दवाइयों का या तशखीस के मामले में जिस चीज़ की ज़रूरत हो या नई गाइडलाइन जो पूरी दुनिया में बनती हैं, उनको कंट्री स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट करना, और फिर टेक्निकली जो प्रोविंशियल टीबी कंट्रोल हो गया, नेशनल टीबी हो गया, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, जहाँ पे टेक्निकल एरिया जहाँ पे उनको समझ आती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट एफर्ट अपनी नहीं कर सकती, तो वहाँ पे WHO अपना टेक्निकल। मंगोरा में माहौलियाती आलूदगी के बारे में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सवात मोहम्मद इब्रार हुसैन की इस रिपोर्ट में। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मलकन डिवीजन की जानिब से मंगोरा में माहौलियाती आलूदगी के बाद सेमिनार का इनेकाद किया गया। स्वात आगाही सेमिनार से डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट कैसर खान, डिप्टी सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट तनवीर अहमद, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मलकन डिवीजन मोहम्मद शाह जमील, मैनेजर वेटर मोहम्मद जुबैर, रीजनल वेट्स इंचार्ज स्वात इंजीनियर इम्तियाज अहमद, SP ट्रैफिक ज़ैर अव्वल
نے خطاب کیا۔ سواد اور ماحولیاتی آلودگی کے پھیلانے والے مختلف عناصر اور ماحول اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات سے متعلق مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ بات سیمینار میں ٹرانسپورٹ شعبہ سے منسلک افراد و عوام نے بھی شرکت کی۔ بات سیمینار سے خطاب میں ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ نظامت ٹرانسپورٹ اینڈ ماس خیبر پختونخوا فیصل خان کا کہنا تھا کہ انسانی زندگی کی متاثر ہو رہی ہے۔ آبادی بھی ہنگام اضافی اور گاڑیوں کے بے جا استعمال سے ماحولیاتی آلودگی کا حجم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بات ایسی میں مسلسل آگاہی کی ضرورت ہے۔ سیمینار سے خطاب میں ڈپٹی سیکرٹری محکمہ ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ گلوبل خارج کرتے ہیں اور یہ گیس اتنی مؤثر ہے کہ فضائی آلودگی کا سبب بنتی ہوئی قدرت ماحول انسانی صحت کو خراب کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آلودگی پھیلانے کے ٹرانسپورٹ کا اس وجہ سے ٹرانسپورٹ میں منسلک افراد آگاہی کی ضرورت ہے، جس کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں۔ ایس پی ٹریفک زیرب الخان کا کہنا تھا کہ گاڑی مالکان ویژل فٹنس سرٹیفکیٹ باقاعدگی سے حاصل کریں اور ماحول دوستی کا ثبوت دیں۔ انہوں نے شہروں سے ان سہولیات سے استفادہ کرنے اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے بعد ہی گاڑیاں روڈ پر لانے کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین محمد شیخ کے ساتھ گھوٹکی کے علاقے قادرپور میں 3 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہر ڈاکٹرز نے 800 مریضوں کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور مفت ادویات دی۔ اہل علاقہ کی جانب سے اس اقدام کو خوب سراہا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی کے علاقے قادرپور میں 3 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہر ڈاکٹرز نے 800 مریضوں کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور مفت ادویات دی۔ اہل علاقہ کی جانب سے اس اقدام کو خوب سراہا گیا۔ کھپرو کے نواحی علاقے میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ محفل میلاد کا عظیم الشان پروگرام منعقد کیا گیا۔ محفل میلاد میں مشہور نعت خوانوں نے حضور کی شان میں نعت کے نذرانے پیش کیے۔ محفل میلاد سے مفتی احمد علی سکندری اور میرپور خاص سے آئے ہوئے مولانا حیات نقشبندی نے خصوصی خطاب کیا اور دونوں جہانوں کے سردار آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ربیع الاول کو خصوصی نسبت ہے، کیونکہ ربیع الاول میں نبی کریم علیہ السلام اس جہان بود و باش میں تشریف لے کر آئے۔ اس دنیا میں نبی صحیح کی جلوہ افروز جو ہے ہوئی ہے وہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، اس لیے اس مہینے میں اللہ کے رسول کا ذکر بڑھ چڑھ کے مسلمان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ایک پیغام دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حیات طیبہ پہ ہم عمل کریں گے تو دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھلائی اور بہتری ہے، اور میلاد کے توسل سے یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو پوری زندگی اپنے آقا کا میلاد و جشن کرتا ہے، کیونکہ ہمارا دنیا آخرت میں سرمایہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہے۔ میلاد منایا انشاءاللہ تعالیٰ آئندے ہر سال مناتے رہیں گے۔ یہ خوشی ہے، ہم کو گھر کو چراغاں کر دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندے کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ ہم اپنے گھر کو جو ہے چراغاں کرتے ہیں، یا ہمارے گھر علماء کرام آتے ہیں وہ خطاب کرتے ہیں، اور منانا چاہیے، اور ہر کسی کو چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یاد میں ہے میلاد منائے، خوشی منائے اور اپنے گھر کو چراغاں کریں۔ اس موقع پر فقیر نور محمد کبر، فقیر فیض محمد کبر، ریاض کبر، محمد فیاض کبر، حافظ محمد قاسم راجڑ، مفتی امید علی سکندری، ہاشم کبر سمیت عاشقان رسول کی بڑی تعداد محفل میلاد میں موجود تھی۔ اس موقع پر کبر ہاؤس کو نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔